Uh, okay, so today we will discuss equilibria regarding AS syllabus. और इक्विलिब्रिया रिगार्डिंग एएस सिलेबस में टर्म इक्विलिब्रिया का मतलब होता क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता, नॉर्मली इक्विलिब्रियम का मतलब स्टूडेंट ये समझते हैं कि कोई चीज रुक गई। नो, इक्विलिब्रियम मीन्स के एक चीज जो है वो स्टेबल हो गई है। लाइक अगर वो मूव कर रही है दो डिफरेंट डायरेक्शंस में या सिंगल डायरेक्शन के अंदर, तो वो स्टेबल है। So basically the term equilibria is related to stability of the object. And equilibria, there are two types of equilibria which we discuss. One is called static equilibria and other is called as dynamic equilibria. Now in your syllabus we are related to dynamic equilibria because one of the example of dynamic equilibria is a part of your syllabus. And dynamic equilibria, the term dynamic equilibria is observed where? For example, an electron is revolving around the nucleus. It is in dynamic equilibrium. A train is moving with a constant velocity. It is in dynamic equilibrium. And similarly, when a reversible reaction is going on, into forward and backward direction, So that means the object is in dynamic equilibrium. So now here the term dynamic equilibrium we use for reversible reaction in case of chemistry, and in reversible reaction means there are two-way reaction. Reversible reaction का मतलब two-way reaction होता है. Now when you have question in the examination that what is mean by dynamic equilibrium, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये आप लेंगे कि इट इज अ स्टेज at which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. So whenever we talk about dynamic equilibrium, this is the definition which we use in case of chemistry. Otherwise dynamic equilibria जो है वो बहुत सारा होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा. Dynamic equilibrium की examples बहुत सारी हो सकती हैं. But in chemistry when we talk about dynamic equilibria, तो हम कहते हैं कि a stage at which rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. इसका मतलब ये होता है कि जितने particles रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड पर गए, उतने ही पार्टिकल प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड पर वापस आए. दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल. तो जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का स्टेज होता है. And all reversible reactions are represented by double arrow. All reversible reactions are represented by double arrow, and this side is known to be a reactant side and this side is known to be a product side. Right. Now once dynamic equilibrium is achieved, rate of forward reaction and rate of backward reaction become equal to each other. तो फिर क्या होता है?
फिर ये होता है कि जितने रिएक्टेंट साइड से पार्टिकल प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं उतनी प्रोडक्ट साइड से वापस रिएक्टेंट साइड पर आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन एट प्रोडक्ट साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन एट रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, वो कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever we say at dynamic equilibrium, concentration of reactant and product are not equal, they are constant. Equal नहीं होती, ये नहीं है कि अगर 1 मोल रिएक्टेंट साइड पर है तो प्रोडक्ट साइड पे भी 1 मोल ही होगा। नो, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। ये भी एक टिपिकल फीचर है इक्विलिब्रिया का, डायनामिक इक्विलिब्रिया का, कि इन केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम the rate of forward reaction equal to backward reaction, that means concentration of reactant and product become constant, not equal. And once the concentration become constant, so the ratio of concentration is also become constant, and that ratio is represented by capital K, और ये कैपिटल K जो है, दिस इज नोन टू बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस K is equivalent to ये जो K है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत सिंपल बात है। देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी रिएक्टेंट साइड की और प्रोडक्ट साइड की, तो लॉजिकली उसका रेशियो भी फिक्स हो जाएगा, और रेशियो भी चेंज नहीं होगा। अगर फर्ज करें कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो गई और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 0.2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर विल रिमेन 2। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ concentration of product to concentration of reactant at equilibrium. It is a ratio of concentration of reactant to concentration of product at equilibrium. और इस K के साथ ये जो स्मॉल c लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि this equilibrium constant is calculated in term of concentration. और ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, ये जो ब्रैकेट नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट को हम पढ़ते ही कॉन्सेंट्रेशन है, इस ब्रैकेट को हम कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली जो आइडिया डेवलप हुआ है वो ये है कि once equilibrium is achieved, then the ratio of concentration of product to concentration of reactant become constant. होपफुली ये बात समझ में आ गई। जी कोई कुछ कह रहा था? राइट। तो ये तो हो गई बात कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। ये रेशियो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये रेशियो जो होता है वो हर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, बिकॉज एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है उसका अपना पेस, उसका अपना रेट होता है। इसलिए हर इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है।
every reversible reaction has its own K value. और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आमतौर पे स्टूडेंट मिस करते हैं एएस में कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट only depends upon temperature. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हेलो, मुझे नहीं खानी सुंडी। अरे तो सही से धो ना, मैंने सही से धो देता हूं। ओ भाई, मैं पहले भी कह चुका हूं अपने माइक बंद रखा करें, जब बोलना हो तो बता वो जो है वो उसको अनम्यूट करें और उसके बाद फिर म्यूट कर दिया करें, वरना हमें आपके मामला जितने भी घर में हो रहे हैं सब पता चल जाता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं ये बता रहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। The value of equilibrium constant is not changed by the change in concentration. It is not changed by the change in pressure. It is not changed by the change in container or the volume of container. It only depends upon temperature. तो अगर आपको कभी कहीं पर भी ये सवाल आता है कि रिलेशन पूछा जाता है कि what is the relation in between equilibrium constant and temperature, तो वो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता, बट यस डिपेंड करता है। वो आगे मैं फैक्टर आपको बताऊंगा उस पर, लेकिन इन जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। मैं ये कह रहा हूं भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो होता है, बस कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है, और वो रेशियो फिक्स इसलिए होता है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिक्स हो जाती है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएंगी तो उनका रेशियो भी फिक्स हो जाएगा। तो वो जो रेशियो है जो कॉन्सेंट्रेशंस का, वो रेशियो कॉन्सेंट्रेशंस का कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, इसलिए कि बात बहुत सिंपल है कि भाई जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो उनका रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, मैंने कहा आपको कि हर रिएक्शन का जो केसी वैल्यू होती है वो हर रिएक्शन की अलग अलग होती है, लेकिन हर रिएक्शन की अलग अलग होती है। बेटा ये जो भी एंटर होना चाह रहे हैं ये अपने नाम के साथ एंटर होंगे, अदरवाइज मैं उनको एंटरटेन करूंगा। बेटा मैंने ये कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये डिपेंड करता है फिर वो फैक्टर जो आपने पढ़े थे। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन उन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। और अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं, और नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, और फिर उससे हम कैसे यूनिट ड्राइव करते हैं, ये A2 में भी सवाल आता है। और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखने के लिए we just want to write an equation. For example, if you have PCl5 dissociated to form PCl3 and Cl2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है,
और इसके लिए आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट यू विल राइट Kc, and Kc is equal to concentration of product side upon concentration of reactant side। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड पे जो लिखा हुआ है वो एक तो लिखा हुआ है PCl3 गैसियस, और जो दूसरा यहाँ लिखा हुआ है वो है क्लोरीन गैसियस। तो जितने भी रिएक्टेंट साइड पर या प्रोडक्ट साइड पे जितने भी कंपाउंड लिखे हैं, all compounds are the part of equilibrium expression or divided by concentration of reactant side। तो ये reactant side। अच्छा, एक चीज आप ऑब्जर्व, दो बातें मैं आपको इसमें यहाँ इंडिकेट कर दूं। एक तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने स्टेट सिंबल्स लिखे हैं। इंटरनेशनली रूल ये है कि स्टेट सिंबल शुड बी अ पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ऑलरेडी आपको स्टेट उसका मालूम नहीं है, तो फिर तो आप ना लिखें, ठीक है। बट इफ द स्टेट्स आर मेंशन्ड देन यू हैव टू मेंशन योर स्टेट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि इन केसी एक्सप्रेशन सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड, एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉलिड्स never to be a part of equilibrium expression। सॉलिड्स को हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते। सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। सॉलिड्स को आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते। लिक्विड्स, एक्वस, गैसेस, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का पार्ट होते हैं। बट solids are not included in the Kc expression because solids do not have concentration। concentration का यूनिट होता है number of moles per dm cube। तो solid जो है वो concentration यानी कि number of moles per unit volume में, आप जब उस solid को dissolve करते हैं तब वो solution बनाता है, तो वो aqueous हो जाता है। तो solid is never to be a part of equilibrium expression। नेक्स्ट, जहां तक इसके यूनिट का ताल्लुक है, तो यूनिट जो होगा वो मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर डीएम क्यूब अगेन कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब अगेन कॉन्सेंट्रेशन। तो मोल पर डीएम क्यूब एंड मोल पर डीएम क्यूब आर कैंसल आउट, सो नाउ द यूनिट ऑफ Kc विल बी मोल पर डीएम क्यूब। तो दिस इज how to write equilibrium expression। और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हैं, और इसके बाद जो है इसका यूनिट आप कैसे ड्राइव करते हैं। बिकॉज ये यूनिट जो होता है ये A2 में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट पूछा जाता है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, एक और इंपॉर्टेंट होती है बात, वो ये कि अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर, आपकी इक्वेशन के अंदर, अगर आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ ये है, 2 मोल ऑफ अमोनिया गैसियस टू फॉर्म नाइट्रोजन गैसियस प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैसियस। अब आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे जब, तो प्रोडक्ट साइड पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन गैसियस है एंड द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इज 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसियस, और इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो इट विल बिकम 3। तो पावर हमेशा जो कोफिशिएंट होता है दैट विल टर्न इनटू पावर whenever we write equilibrium expression, divided by concentration of ammonia gaseous square। Now this is the expression which we use to represent Kc।
whatever the coefficient you have, it will convert into power. जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में कन्वर्ट हो जाए. And now if you want to find out unit, so again unit of concentration is mole per dm cube into mole per dm cube की power 3 divided by mole per dm cube की power 2. तो अब यहाँ पावर 4 डिवाइडेड बाय पावर 2 आ गई, तो ये बनेगा यूनिट इसका मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि मोल स्क्वायर डीएम माइनस 6. ये मैं यूनिट आपको इसलिए ड्राइव करवा रहा हूँ कि यूनिट्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू A2s, बिकॉज A2s में भी क्वेश्चन आता है केसी और केपी के न्यूमेरिकल्स, एक्सप्रेशन लिखने का और यूनिट आइडेंटिफाई करने का. ये सारा का सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको पेपर में नजर आएंगे. पेपर में भी ये क्वेश्चंस होते हैं. कोई जनरल फार्मूला नहीं होता. जनरल फार्मूला केसी का कैसे हो सकता है? जनरल फार्मूला वही है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशो इज केसी. अदरवाइज कोई इसका स्पेसिफिक जनरल फार्मूला नहीं है. अच्छा, इसके बाद जो है जैसे केसी होता है इसी तरह से एक टर्म हम इस्तेमाल केपी करते हैं. नाउ द डिफरेंस in between Kc and Kp is related to the terms C and P. When we talk about Kc, तो Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और Kp का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर. Here small p represents partial pressure. So Kp जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि Kp में जो टर्म है P, it represents partial pressure and when we talk about partial pressure, so what is meant by pressure? Partial pressure is defined as it is pressure exerted by a gas molecule. This is pressure exerted by gas molecules. देखें, if you have a container और उस कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस मौजूद हैं, तो जो टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर होगा, जो टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर होगा वो डिफरेंट गैसेस की वजह से होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंटेनर में A, B and C, देयर आर 3 गैसेस, तो A के पार्टिकल भी कोलाइड कर रहे होंगे विद द वॉल ऑफ कंटेनर, B के पार्टिकल भी कोलाइड कर रहे होंगे, C के पार्टिकल भी कोलाइड कर रहे होंगे, and the total pressure is equal to sum of pressure exerted by all the particles inside the container. लेकिन अगर A, B और C ये 3 अलग अलग गैसेस हैं,
तो ए के पार्टिकल अपनी तरफ से अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, बी के अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, सी के पार्टिकल अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, और जो टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर होगा वो सम अप होगा, वो सम होगा, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई हो कि जो टोटल प्रेशर होता है इनसाइड द कंटेनर, उसमें अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस इन्वॉल्व हो तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हैं वो अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और जो टोटल प्रेशर होता है वो सम होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो वो जो इंडिविजुअल प्रेशर है हर गैस का, जो पार्टिकल उसके एक्सर्ट करते हैं, हम उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, और ये पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, प्रेशर टोटल, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोलर रेशियो इनटू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक गैस का इनसाइड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, और उस कंटेनर में जो है वो 2 डिफरेंट गैसेस हैं, तो वो जो 1 एटमॉस्फेयर है दैट इज टोटल प्रेशर, और उस टोटल प्रेशर में से आपको अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कंटेनर में कौन सी गैस का फ्रैक्शन ज्यादा है, कौन सी गैस का मोलर फ्रैक्शन ज्यादा है। जिसका मोलर फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जिसका मोलर फ्रैक्शन कम होगा वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि व्हाट इज मीन बाय मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है ये मोल ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनसाइड द कंटेनर। मोल्स यानी सम ऑफ द टोटल, सम ऑफ द मोल्स। अगर कंटेनर में जैसे मैंने आपसे कहा कि गैस ए बी और सी है, तो आपको जब मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो मोल ऑफ ए को आप डिवाइड करेंगे टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स का मतलब यह है कि मोल्स ऑफ ए बी एंड सी। तो वो ए का फ्रैक्शन आ जाएगा, बी का निकालना होगा तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ले लेंगे। अगर सी का निकालना होगा तो फिर आप मोल ऑफ गैस सी से टोटल मोल डिवाइड कर देंगे। इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है, और मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल। तो एक तो मैंने आपको ये चीज जो समझाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमूमन स्टूडेंट जो आपका एएस लेवल है यहाँ पर ये चीज इनकी मिसिंग होती है, और इनको केपी का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता। तो ये थोड़ी सी कोशिश है मेरी कि आपको ये चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। But still, if you have any question, then please ask. जी, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है। अगर एक कंटेनर में एक से ज्यादा गैस मौजूद हैं तो हर गैस जो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो पार्शियल प्रेशर होगा, और उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये चीज जो है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू राइट केपी एक्सप्रेशन। और केपी एक्सप्रेशन लिखने के लिए अगर हम इक्वेशन लेते हैं कि N2 plus 3H2 to form 2NH3, और अब आपको केसी एक्सप्रेशन नहीं लिखना, इफ यू वांट टू राइट केपी एक्सप्रेशन। लेकिन ये एक एक मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन फिर इसके बाद इसका न्यूमेरिकल उसी से कनेक्टेड होता है। अगर आपने एक्सप्रेशन सही नहीं लिखा तो आगे न्यूमेरिकली भी आप सही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ इन ऑर्डर टू राइट केपी एक्सप्रेशन, तो देखिए केपी जो है, केपी इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन। केपी जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। So now instead of using concept of concentration here, we will use concept of partial pressure, और partial pressure को हम represent करते हैं by P, small p,
और ये मैंने लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, बिकॉज बेसिक आइडिया वही रहेगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो। लेकिन अब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, तो आप ये कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे ना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन यू विल यूज P, दैट इज पार्शियल प्रेशर, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, यही लिखने का तरीका होगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, तो आप पार्शियल प्रेशर की पावर 2 कर दें, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड। और अब रिएक्टेंट साइड पर दो हैं, वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और ये प्लस हो रहा है तो प्लस का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की जो पावर है वो 3 हो जाएगी। और पावर 3 होने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो वही बात है कि जो कोफिशिएंट है वही पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। कोई क्वेश्चन? यूनिट जो इसका निकालना है, अगेन यूनिट निकालने का तरीका यही है, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट्स होते हैं, जो प्रेशर के यूनिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब आपको एग्जामिनर प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी दे सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी दे सकता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में भी दे सकता है, पास्कल में भी दे सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही होगा जैसे हमने केसी का यूनिट सॉल्व किया था। तो यूनिट ऑफ केसी और यूनिट ऑफ केपी ये फिक्स नहीं होते, ये एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन वेरी करते। सम टाइम ऐसा भी होता है कि देयर इज नो यूनिट ऑफ केपी और केसी। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए कि 2HI गैसियस टू फॉर्म H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस। अब अगर आप इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखेंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट साइड पर भी 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट साइड पर भी 2 मोल्स। तो जब आप इनके यूनिट पुट करेंगे तो ये यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दिस इक्वेशन देयर विल बी नो यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। तो सम टाइम आपको याद होगा एमसीक्यूज में ऐसा सवाल भी आता था, और कभी कभार 8-2 के पेपर के अंदर भी इस तरह होता है कि आपको 3-4 इक्वेशन गिवन हो और उसमें से सिलेक्शन करने का कहा जाए, 1 मार्क का क्वेश्चन कि विच ऑफ द इक्वेशन डज नॉट हैव और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डू नॉट हैव यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। सो यूनिट ऑफ केसी एंड केपी फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सप्रेशन। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यहां तक का अगर कोई क्वेश्चन आपका जहन में है तो पूछ लीजिए, इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ केसी इन टर्म ऑफ एक्स। ओके, सो नेक्स्ट जो है, मैं एक इक्वेशन यहां लिख रहा हूं कि ए गैसियस प्लस बी गैसियस फॉर्म ए बी गैसियस। और मैं आपसे ये कहता हूं कि इनिशियल concentration of A is 0.1 mole per dm cube. Initial concentration of B is 0.5 mole per dm cube. And initial concentration of product is 0. तो यूजुअली होता क्या है कि आप रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। आफ्टर सर्टेन टाइम इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होता है, और इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश होने का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए। नाउ वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड,
once equilibrium is reached, then what about equilibrium concentrations? कुछ MCQs आपको याद होगा पास पेपर में ऐसे हैं जो कि x की टर्म में पूछे हुए हैं, और ये x की टर्म में आपको आंसर देना आना चाहिए, बिकॉज A2 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर आपको ये x की टर्म में पूछेंगे। देखिए, मैं अब बड़ी सिंपल लॉजिक है कि मैं इसको यहां इस तरह देख रहा हूं कि जब A और B आपस में रिएक्ट करेंगे तो दोनों के रिएक्ट करने का रेशियो जो है वो 1:1 है। हालांकि आपने एक का इनिशियल अमाउंट 0.1 लिया है और दूसरे का इनिशियल अमाउंट 0.5 लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आप बहुत ज्यादा ले लें और एक बहुत कम ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपस में इनका रिएक्शन होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में, वो हमेशा उनके रिस्पेक्टिव रेशियो से होगा, उनके रिलेटिव रेशियो से होगा। और यहां पर रिलेटिव रेशियो ये कहता है कि 0.10 से x माइनस हो जाएगा, यानी जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो इक्विलिब्रियम पर 0.1 माइनस x होने का मतलब यह है कि व्हाट इज x? x is the amount of reactant which is converted into product. X is the amount of reactant lost, amount of reactant used. और डेफिनेटली ये यूज होके कहां जाएगा? ये प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हो। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो जो पहले 0.1 था, अब वो 0.1 नहीं रहेगा, 0.1 से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं लिख रहा हूं 0.1 माइनस एक्स, यानी x वो अमाउंट है which is converted into product. Next, 0.50 minus x, ये b है। अच्छा, b का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 0.5 माइनस एक्स, 0.5 अगेन इनिशियली कितना था? b 0.5 था, माइनस एक्स का मतलब है कि वो अमाउंट जो चला गया। अब मैंने दोनों जगह माइनस एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि a का और b का रेशियो 1:1 है, जितना a यूज होगा उतना ही b यूज होगा। तो जब a और b सेम अमाउंट में यूज होंगे, जब a और b जो है वो सेम अमाउंट में यूज होंगे, तो दोनों का जो अमाउंट इस्तेमाल होगा वो सेम होगा। एंड नाउ फाइनली बोथ आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सवाल ये है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा? एनीवन कैन आंसर? अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हैं। क्विक, what will be the amount of product at equilibrium? Three. No one. Okay. Amount of product will be x. इसका रीजन ये है कि रिलेटिव रेशियो ऑफ A एंड प्रोडक्ट इज 1:1. 1 मोल ऑफ A विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ AB, यानी जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो x माइनस हो गया, माइनस होने का मतलब कंज्यूम हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो अगर x कंज्यूम हो गया तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी x बनेगा, बिकॉज रेशियो इज 1:1। हाँ, अगर रेशियो 1:2 होता तो फिर आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट x नहीं लिखते, फिर आप 2x लिखते। अगर रेशियो 1:3 होता तो फिर आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 3x लिखते। सो वॉट एवर द कोफिशिएंट यू हैव, रेशियो की डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बेस होगी। जितने जो उनका रिलेटिव रेशियो होगा उसी हिसाब से जो है वो यूज होगा और उसी हिसाब से वो प्रोड्यूस होगा। अगर एक और इक्वेशन में बताता हूं, सपोज करते हैं कि यहां पर 2a टू फॉर्म a to b है। अब इसके लिए हम यही चीजें रखते हैं। सवाल ये है कि अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1, इसकी 0.5 और इनिशियली प्रोडक्ट 0। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा?
इक्विलिब्रियम पर आपकी इक्वेशन ये कहती है कि ए का और बी का रेशियो 2:1 का है, यानी कि जितना ए कंज्यूम होगा उसका हाफ बी कंज्यूम होगा। 2 और 1 का रेशियो है, यानी अब ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट नहीं करेंगे, ये 2:1 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। यानी अगर ए 2 मोल रिएक्ट करेगा तो बी सिर्फ 1 मोल रिएक्ट करेगा। इसलिए अब जब आप यहां पर लिखेंगे, अब जब आप यहां पे लिखेंगे तो आप यहां -x नहीं करेंगे, आप यहां -2x करेंगे। 0.10 -2x, या दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि 0.10 से आप x माइनस करेंगे तो यहां पर 0.50 से आप माइनस करेंगे x डिवाइडेड बाय 2। ये जो मैंने और करके लिखा है, कुछ पास पेपर में क्वेश्चन इस सेकंड टाइप में भी पूछे गए। जो कोफिशिएंट है वो x होता है, और जो कोफिशिएंट का रेशो होता है, कोई भी रिएक्टेंट आपस में उसी रेशो को फॉलो करते हैं जब रिएक्ट करते हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने सेकंड लिखा है कि 0.10 माइनस x, तो इक्वेशन कहती है कि अगर यहां से x निकलेगा तो यहां से x/2 निकलेगा, क्योंकि 2:1 का रेशो है। और 2:1 के रेशो का मतलब ये कि जितना ए कंज्यूम होगा उसका हाफ बी कंज्यूम होगा। तो अगर ए कंज्यूम मैंने एक्स लिखा है तो एक्स जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, सॉरी जो बी कंज्यूम होगा वो x/2 हो। तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं जो मैंने लिखे हैं, दोनों ऑप्शंस आपकी समझ में आने चाहिए। प्रोडक्ट का भी बात करते हैं। अब प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट में रेशो क्या कहता है? रेशो ये कहता है कि 2 मोल ऑफ ए अगर इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्ट का 1 मोल बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ए जितना भी इस्तेमाल होगा उसका हाफ जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। 2 और 1 का रेशो है। आप इसको बी से भी कंपेयर कर सकते हैं, ए से भी कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। ए का और प्रोडक्ट का रेशो 2:1 है, तो अगर ए जो है वो -2x हुआ तो -2x का मतलब यह है कि x 2x का हाफ इज x, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो x बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो x बनेगा। और अगर आप सेकेंड टर्म में लिखें तो प्रोडक्ट x/2 बनेगा, क्योंकि यहां पर हमने अज्यूम किया है कि a जो है वो x मोल कंज्यूम हो गया, तो x का हाफ x/2 होता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसका हाफ बनेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत की पॉइंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे पता है कि मेजॉरिटी आप में स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हो, और A2 में प्रॉब्लम ये है कि हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जब हम इनका चैप्टर करेंगे। इसलिए बी केयरफुल, जो मैं चीजें करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूँ। आप देखेंगे जब आप जब A2 शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो चीजें हमने की हैं आप इसमें कंफर्टेबल हैं, इसलिए आपको आगे की चीजें समझ में आ रही हैं डायरेक्ट A2 शुरू करने में, वरना बहुत आपको प्रॉब्लम हो। एंड प्लीज बुक रीडिंग, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब जैसे ही आज हमने इक्विलिब्रियम पर बात की है, मैं भी इसको कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में, लेकिन ये जो मैंने इक्विलिब्रियम में जितनी बात की है अगली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और फिर ली चैटर को भी कवर करना है मुझे। लेकिन ये जो कुछ मैं आपको करवा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको A2 में काम आएगा। A2 में ये बेसिक नॉलेज अगर आपकी नहीं है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। एक और एग्जांपल मैं जो है वो क्विकली आपको देता हूं, और अब अगर फर्ज करें कि हमारी इक्वेशन ये है 2SO2 गैसियस 2SO3 to form 2SO2 gaseous plus O2 gaseous
और इनिशियली हमें कहा जाए कि इनिशियली इसके 0.25 मोल और ये 0 है और ये 0 है, व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रियम? आपको बतानी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये ब्लैंक आपको गिवन। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर 1 में भी और अगेन पेपर 2 में, दोनों जगह आपको आते रहे हैं और पेपर 4 में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस नजर आएंगे। आपको इन टर्म ऑफ एक्स आंसर करना है। अब देखें, और एक और चीज जो आपको गिवन है, सपोज इसमें कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 5 dm³, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के, और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा सवाल है। अब सबसे पहले इनिशियली ये 0.25 है, हमेशा रिएक्टेंट साइड से माइनस होगा, रिएक्टेंट साइड से माइनस होगा। एनीवन कैन आंसर कि कितना माइनस करना चाहिए? जी बेटा, कितना माइनस करना चाहिए? गुड, वेरी गुड बेटा, 2x माइनस करना चाहिए, बिकॉज कि यहां पे जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो वॉट एवर द कोफिशिएंट आप उसी टर्म में x लिखेंगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.25, उसमें से -2x हो जाएगा। और इसके बाद एक और चीज जो है वो ये है कि डिवाइडेड बाय 5 भी करना होगा, इसलिए कि आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछी जा रही है और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर dm³, मोल डिवाइडेड बाय dm³। तो 0.25 -2x डिवाइडेड बाय 5, ये इक्विलिब्रियम पर मोल पर dm³ यानी कॉन्सेंट्रेशन होगी SO3। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट प्रोडक्ट? इनिशियली प्रोडक्ट 0 है, इक्विलिब्रियम पे कितना प्रोडक्ट बनेगा? रेशो कहता है 2:2, रेशो कहता है 2:2। गुड परवा, जितना SO3 कंज्यूम होगा उतना ही SO2 बनेगा, क्योंकि दोनों का रेशो सेम है। तो अगर SO3 कंज्यूम 2x है तो SO2 प्रोड्यूस भी 2x होगा, और ये 2x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, यानी वही वाला कॉन्सेप्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करें। नंबर ऑफ मोल्स को इक्विलिब्रियम पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड करें। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। अब रेशो कहता है 2:1 कि 2 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब सवाल यह है कि ऑक्सीजन कितना? गुड नेहा, ये x होगा, x डिवाइडेड बाय 5। ये है बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। बेटा आप में से किसने मुझसे पूछा है कि समझ में नहीं आया? 7 बजे से तंग किया, तो उनसे मैंने कहा था मैं 8:30 बजे उठा रही हूँ, 7 बजे मुझको उठाई जा रही हूँ। अम्मी ने तो 7 बजे से उठा रही है मुझे, 7 बजे से तंग कर रही है बैठ। वो पीछे से कैसे लग रही है? जी, आराम, अगर आप अपना माइक ऑन करके मुझे प्रॉब्लम बता दें तो मैं ज्यादा आपको बेहतर गाइड कर सकूंगा। कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? मैसेज कर दें। पारल जी, आपको होपफुली ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मेरा एक बड़ा सिंपल सा, देखें, एक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा सिंपल एक आइडिया दे रहा हूं कि
जो कोफिशिएंट है हमेशा इक्वेशन में जो रेशो अप्लाई होगा वो कोफिशिएंट की बेस पर होगा। अगर दो कंपाउंड का कोफिशिएंट सेम है तो फिर उनका अमाउंट यूज और अमाउंट प्रोड्यूस भी सेम होगा, और अगर उनके कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं तो वो हमेशा अपने कोफिशिएंट की बेस पर रिएक्ट करेंगे या कोफिशिएंट की बेस पर प्रोड्यूस होंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा कोफिशिएंट बेस बनेगा या जो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वो कोफिशिएंट बेस्ड होगा। अगर फर्ज कीजिए कि मैं अभी इस एग्जांपल में तो नहीं, अगर किसी एक जगह दूसरी जगह होता कि यहाँ कोफिशिएंट 3 होता सपोज, फिर आप क्या करते? अब यहाँ पर रेशियो 2 और 3 का अप्लाई हो रहा है, तो अगर यहां से 2x माइनस होगा तो फिर प्रोडक्ट में 2x नहीं बनेगा, फिर प्रोडक्ट में 3x बनेगा। बड़ा सिंपल सा रूल समझ लीजिए कि जो रेशो होता है वो रेशो ही आपको x की वैल्यू लेनी है। जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपका रेशो होगा। अगर 2:3 का रेशो है तो अगर एक जगह से 2x माइनस हो रहा है तो दूसरी जगह 3x प्रोड्यूस होगा। तो ये जो कोफिशिएंट है वही आपकी पावर बनेगी और वही कोफिशिएंट के हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। अगर किसी इक्वेशन में 1:2 का रेशो कंपाउंड फॉलो करेगा तो अल्टीमेटली आप खुद सोचिए ना कि अगर एक कंपाउंड का 1 मोल दूसरे कंपाउंड के 2 मोल से रिएक्ट करना है तो फिर वो x अगर रिएक्ट करेगा तो दूसरा हमेशा 2x रिएक्ट करेगा। ये एक सिंपल रेशो है। इक्वेशन में जो रेशो फॉलो हो रहा है आपको x में भी वही रेशो फॉलो करना है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, राइट। तो ये जो है वो दिस इज द डिस्कशन। इसके अब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, और होपफुली आप अपने प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे और आप इक्विलिब्रिया को पढ़ेंगे बुक से। आपको जो कंफ्यूजन्स होंगे वो आपके सामने होने चाहिए ताकि आप जो है वो क्लास में उसको शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बगैर डिस्कशन के अगर आप क्लास में आए और चले गए, आपको जो कंफ्यूजन है बेटा अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे। अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं आपको कोई सही तरह से कन्वे कर पाऊं। ठीक है, होपफुली अगली क्लास में आप इसको पढ़ेंगे और फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करें। और अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। Right now, if there any question, then please ask. Okay, so इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे कल।